उमंग जी, मेरा सवाल आपसे है कि जब भी एक फ़िल्म बनती है जिसमें हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान के ऑफ़िशियल्स या गवर्नमेंट की तरफ से पसंद नहीं किया जाता, बैन भी हो जाती है मूवी। लेकिन ये कहानी अधूरी हो जाएगी अगर पाकिस्तान के लोग भी ना देख पाएँ, तो पूरी टीम से आप क्या कहना चाहेंगे अगर ऑफ़िशियल्स देख रहे हैं? आप चाहते हैं कि आप ज़रूर चाहते होंगे कि ये रिलीज़ हो, लेकिन आप फिर भी कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो प्लीज़ बताइए? ऑब्वियसली वी वांट देम टू सी इट एंड इस पिक्चर में ऐसा कुछ नहीं है जो ऑब्जेक्शनेबल है एंड हम वहाँ भेजेंगे और उनकी राय मांगेंगे, उनको दिखाएंगे कि प्लीज़ देखें पिक्चर एंड ऑब्वियसली we want them to see. I mean, we want every Indian to see. We want Pakistanis to see. We want everyone around the world to see this, to recognize what has happened should not happen. It's not only those two countries. But yes, I want them to see it. हाँ No, I don't think there is any Pakistan bashing per se in the film. But yes, the film is about the prison over there. And there were a lot of atrocities he was subjected to. And I'm not sure whether that happens over here as well. So I think the point to be taken here is that to treat somebody for other things just because of their nationality and not their crime in a wrong way, whether it happens in India or Pakistan, both is wrong. But since the film is based in a Pakistani prison, that is the only difference. I think there is no, as per se, that we are bashing a country like Pakistan. It's a situation that, you know, a normal person is stuck in the political ups and downs between two countries. ऐश्वर्या जी, दलबीर जी ने अभी कहा कि कहीं ना कहीं आप भावुक हुई होंगी शूटिंग के दौरान, इधर उधर। हाँ, दलबीर जी ने अभी कहा कि आप कहीं ना कहीं भावुक हुई होंगी उस दौरान। तो आप चूँकि उनकी पीड़ा को एहसास कर चुकी हैं, तो किस तरह से व्यक्त करना चाहेंगी दलबीर जी की पीड़ा को? मैं स्क्रीन पर व्यक्त कर चुकी हूँ कहानी में, जब आप फिल्म देखोगे। और अगर मैं पर्सनली भावुक हुई हूँ, वो तो जाहिर है आज यहाँ बैठ के उनको सुनकर भी हम सभी भावुक हुए हैं। और उनकी कहानी को महसूस करना रोज़ सुबह से रात तक, वो मतलब इंसान ही नहीं रहेगा अगर भावुक ना हो जाए। इनका बड़प्पन है कि वो इस मिठास के साथ ये बात कह भी रही हैं, पर भावुक होना तो जाहिर था ही। रणदीप और ऐश्वर्या दोनों से सवाल है मेरा यहाँ पर कि इतना इंटेंस कैरेक्टर है, रियलिज्म में रूटेड है, तो शूटिंग ख़त्म होने के बाद कहीं वक्त लगा इससे बाहर आने से, इस कैरेक्टर से बाहर आने के लिए? क्या आप लोग शूटिंग ख़त्म होने के बाद भी थोड़ा डिस्टर्ब रहे? मैं कई बार हॉस्पिटल जा चुका हूँ इसकी वजह से। नहीं, ऑफ कोर्स I had to tell myself कि I have not spent 23 years of my life in prison. I have not gone through all that. So there was a big hangover because of the involvement and because of the involvement that was required by the film. So obviously it all lingers on. I think that has happened to me before as well. And from after Highway, I was depressed for a long time. I had to tell myself that I'm not a petty taxi driver and that's not my life and nobody loves me. So, you know, you go through all that. But coming to your point, Sardarji, kidhar gaye ho? Yeah. I want to point out something else to you, which is very important to this India-Pakistan situation. Okay? What had happened was that every time that there was hope that he will get released or something will happen, there'll be Pokhara ka bomb, nuclear test. Then there'll be Kargil. Then again you'll get hope that something else will happen between. Then 26/11 happened. Again you got hope. Then, you know, India executed a prisoner here. So every time something happened between the two was happening between the two countries, and the family and Sarabjit had to bear the brunt of it. And that is what I thought I should elaborate why the political situation is responsible and the innocent people are getting the brunt of it. ऐश्वर्या, आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपको इस कैरेक्टर ने कितना डिस्टर्ब किया शूटिंग खत्म होने के बाद? आपको भी वक्त लगा निकलने के लिए इससे बाहर?
मैं सोच रही हूँ कैसे अलग तरीके से इसको जवाब दूँ। आप इनसे मिले हैं, दलबीर जी? अभी उन्होंने हम सब से बात की, हम सब ने महसूस किया इनकी ज़िंदगी। वी गॉट एक झलक या एक इंसाइट इनटू व्हाट शी इज़ ऑल अबाउट। और फिर फट से इन्हें देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, झप्पी दे रहे हैं, इनकी स्पिरिट को देखिए। तो शायद ये कॉमन है हम दोनों में कि बहुत ही इंटेंस सब्जेक्ट है, काम के दौरान कंप्लीटली उस भावना में हम अपने आप को डुबाते हैं। वे कंप्लीटली इन्वेस्टेड, हम जी रहे हैं उस ज़िंदगी को। पर एक काबिलियत है, क्योंकि ज़िंदगी जी रहे हैं, लाइफ इज़ इन द वे, एंड आफ्टर पैकअप you do have your reality, I do have my responsibilities, I do have my child that I immediately return to, I do have my family, I do have my responsibilities, and I cannot afford the luxury of just staying on in one emotional space, because we are multitasking, that's life. And that holds true for everybody sitting here in this room. अभी तो press conference या आप जो भी टाइटल आज शाम को दें, पर यहाँ से निकलते ही हम ये नहीं कहेंगे कि आप पर कुछ असर नहीं हुआ है या कोई इम्पैक्ट नहीं हुई है आज की शाम। पर यहाँ से उठते ही ज़िंदगी को तो एम्ब्रेस करना ही है, अपनी अपनी ज़िंदगी को जीना है ही। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी ऑल हैव द कैपेसिटी टू डू, and look at her, look at them. They're still living their lives, and she does so much for so many people. इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक क्षण भी सरबजीत को भूल चुकी हैं या उस दर्द को कभी भूल पाएंगी। द एंटायर फैमिली पर ज़िंदगी जी रहे हैं, और वेरी स्ट्रांगली, वेरी पॉजिटिवली, एंड वी गॉट टू सी दैट व्हेन वी वर फिल्मिंग इन पंजाब, in their world, in their life. And we all have that capacity, and we need to hold on to that that human resilience. Yeah, we do. उमंग जी, आपसे जानना चाहूँगा, इधर सामने 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 देखिए। It's true. I just realized after what she said, that I don't have a life, man. I swear to God, that's a realization that's just sprung upon me. उमंग जी, हाँ। क्या इस कहानी को दिखाने के लिए आपने कहीं पर कल्पना का भी सहारा लिया है? क्रिएटिविटी, फ्रीडम हाँ। जो आप बोल रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। एग्जैक्टली जैसे जैसे इन्होंने कहानी बताई है, वैसे वैसे मैंने बड़े पर्दे पर दिखाई है। हाँ, ये होता है कि दो इंसिडेंट को ज्वाइन करने के लिए एक थ्रेड बुना जाता है, तो वो थ्रेड आप क्रिएटिवली ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि गाने, रियल लाइफ में गाने नहीं होते, लेकिन हमारे पिक्चर में हैं, बिकॉज हम इंडियंस हैं, हम गाते हैं, पंजाबी गाते हैं, तो मैंने वो डाल दिया था, लाइक सेलिब्रेशन सॉन्ग। ओके, पंजाबी लोग करते हैं गिद्दा, भांगड़ा करते हैं, तो मैंने वो भी डाला है। तो वो एक क्रिएटिव लाइसेंस को एक्सप्लॉइट करते हैं हम, पर अदरवाइज इट्स ट्रू टू व्हाट शी हैड सेड, एंड दैट्स एग्जैक्टली, इट्स लाइक अ बायोपिक। दलबीर जी नमस्ते। दलबीर जी, हमारे कुछ इधर आपके दाएं दिख रहा है ना? आप थक तो नहीं गए ना इतनी देर से? मेरे कुछ सहयोगियों का कहना था कि जैसे फिल्म रिलीज हो जाती है, उसके 3 दिन बीत जाते हैं, तो उससे जो धनराशि जो इकट्ठी होगी, क्या उसको कोई ऐसा ट्रस्ट बना के या किसी तरह से जो लोग, कई लोगों की आर्थिक सहायता की जा सकती है, जिन सैनिकों की, जो लोग प्रिजनर्स हैं, जो उनके परिवारों की सहायता की जाए, ऐसा कुछ विचार है आपके मन में? ये विचार मैं अपना पहले भी रख चुकी हूँ, और उमंग से भी मैंने सहयोग मांगा था, और मैंने इनको बोला कि हम इस तरह की एक संस्था बनाएंगे। और मेरे दिल की इच्छा यही है कि उन कैदियों के लिए जिनके सरकारों ने कभी बात नहीं उठाई है, उनके परिवारों को लेकर उनकी लड़ाई लड़ी जाए। वे ऐसा ना हो कि आर्थिक तंगी की वजह से, जैसे मैंने भी आर्थिक तंगी का सामना किया था। एक बार नवरात्रे थे, और हम दोनों, मैंने और पूनम ने व्रत रखा था। हमने एक थाली ली थी खाने की, और 2 दिन उसमें हमने बिताए थे।
तो इस तरह की परेशानियां उन परिवारों में भी होंगी, मैं महसूस करती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन सब लोगों के साथ में लड़ूं, उनके साथ उनकी मदद करूं, और मेरा दिल की इच्छा यही है कि उनकी जितनी भी मदद हो सके हमारी उस NGO के जरिए हम करें, उनकी रिहाई के लिए कोशिश करें, उनके परिवारों के पालन पोषण के लिए उनका थोड़ा बहुत जो हम कर सकते हैं इंसानियत के नाते हम करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें ऐश्वर्या, रणदीप और उमंग, हमारे बेरी भाई साहब, आप सभी इसमें ज़रूर सहयोग देंगे और हम एक अच्छे से एक संस्था को लेकर आगे चलेंगे। काम बहुत करती हैं सरकारें, लेकिन जो करने वाले होते हैं वो छूट जाते हैं उनसे, उनके दिमाग में ही नहीं आता है। तो इस तरह की एक लहर हम लोग चलाना चाहते हैं, इसे एक बहुत बड़ा रूप देना चाहती हूँ मैं, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए भी जीना चाहती हूँ, जिनको मैं अपना भाई मानती हूँ। हर हिंदुस्तानी मेरा अपना परिवार है और हर हिंदुस्तानी मेरा भाई और बहन है, उनके लिए मैं लड़ना चाहती हूँ और ज़रूर बनाएंगे। और विश्वास करती हूँ कि आप सबके सामने आज उमंग भी ये वादा करेंगे कि इसमें ये मेरा पूरा साथ देंगे और हमारी ऐश, हमारे रणदीप ये भी पूरा हमें सहयोग देंगे, क्योंकि एक पुण्य का काम है। और मैं समझती हूँ कि कैदियों को छुड़ा कर लाना पाकिस्तान से एक गऊ की जान को बचाने के बराबर है। Mrs. Bachchan, you have been used to seeing yourself in the mirror. How was it playing, seeing yourself as a 60-year-old woman in a mirror? How was the transformation? How did you felt about seeing yourself? We are professionals doing a job. I don't think this is, I mean, after so many years in the industry, you get asked if it's a frivolous job about vanity. No, it's not. No, this question isn't even, with due respect, very, very sweet of you to attempt to ask this question, but it's not relevant. We are actors. Getting into character is Saraswati for us. And that's what we do every waking day at our, when we go to work. That's what I it's can all tell you, about. I was very sad. I was very sad looking at her like that. It was like, no, it can't happen. But she did it and she looks good Evidently, even then. He's got a sense of humor. I mean, for everything, he's got little one-liners coming your way. So I think it's giving us reason to smile today. And simply because you'll ask, I don't know why and how, with due respect, you'll expect to be asking financial details of a film and you think someone's going to sit and spell it out here on a stage and what will happen with what you earn from the film and all of that. I don't think you can expect producers and a team to be sitting and answering those questions. But the heart is in the right place. Whatever little bit fees even we have received, I've redirected it completely into the foundation. I have a foundation by my name. So that's what has been the interest and that's what we have expressed from the beginning. Because the soul and the spirit with reason with which we're doing this film is very, very obvious and does not need to be actually broken down and spelled out. But if you insist on asking, then I guess everybody comes up and starts answering questions like these. सुमित, अब मत पूछना भाई कुछ भी। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.